Good morning, dear students. So, we'll be beginning with the next chapter of English grammar, that is tenses. Okay, so in your textbook, the tenses are given in three parts: verbs expressing present, verbs expressing past, and verbs expressing future. But I'll be teaching it in a combined way, okay, so that main basic idea of what are tenses, okay, which are the various kinds of tenses, that should be clear to you. So let us go through it, okay. So before beginning with what a tense is, I want you to know what are verbs. Verbs, as it goes, verbs are actually the action words. हम जो भी एक्शन करते हैं वो एक्शन को डिस्क्राइब करता हुआ जो वर्ड्स होते उसे कहते हैं verbs. ठीक है. verbs के अंदर थ्री टाइप्स होता है. कितने टाइप्स होते हैं? थ्री टाइप्स. which are the three types? Let us see that now. टाइप्स ऑफ वर्ब्स. वर्ब्स के बेसिकली थ्री काइंड्स होते हैं. ठीक है. व्हाट विच आर द थ्री काइंड्स? प्रेजेंट फॉर्म, जिसको हम V1 कहेंगे, past form of verb which is termed as V2, and past participle form of verb which is known as V3. V1 present form, V2 past, V3 past participle. Clear? So you should know which are the three kinds of verbs. Then only you can use it according to the tense. Now let us see what is a tense. Tense. What is a tense? The time at which an action or event occurs. हमने verbs क्या है बता दिया, action words. तो tense क्या होता है? वो टाइम जब वो action होता है उस टाइम को हम टेंस कहते हैं. तब वो वर्ब जो है वो चेंज होता है. अगर वो अभी हो रहा है तो उसके साथ हम अलग फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे. पहले हो चुका है तो अलग तरीके से यूज करेंगे. अब होने वाला है तो अलग तरीके से यूज करते हैं. आप इस चीज से फेमिलियर हो, मुझे पता है. आई एम जस्ट ब्रीफिंग इट आउट. ओके, नाउ लेट अस सी व्हिच आर द टाइप्स ऑफ टेंसेस. Okay, types of tenses. Basically, there are three types of tenses: present tense, past tense, future tense. ठीक है. तीन टाइप के टेंसेस होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट एंड फ्यूचर. बेसिक द सबसे बेस लेवल पे तीन टाइप है. उसके अंदर एक एक के अंदर फोर टाइप्स ऑफ टेंसेस आते हैं. प्रेजेंट के अंदर 4 आता है, पास्ट के अंदर 4 आते, एंड अंडर फ्यूचर ऑल्सो यू हैव 4 काइंड्स ऑफ सब टेंसेस. ओके, दैट इज सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, present continuous, past continuous, future continuous, present perfect, past perfect, future perfect, and the last present perfect continuous, past perfect continuous, future perfect continuous. Understood? So these are the three basic type of tenses, and under those three you have 4 different kinds of tenses. Now let us see a small example which will explain us what or how the 3 category of tenses are segregated. Okay? Yes, here a daily schedule is given. ठीक है, एक फुल डे शेड्यूल एक इंडिविजुअल का दिया है. लेट अस सी वो क्या करते हैं. ठीक है, सपोज अभी का टाइम, द प्रेजेंट टाइम इज, व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम टीचिंग यू दिस टाइम. अगर लेट अस टेक इट इज 10 o'clock. Okay, I am taking the present time as 10 o'clock. अभी का अपना टाइम है 10 AM. Now let us see क्या और किस तरीके से हम इस शेड्यूल के थ्रू 3 टेंसेस को समझते हैं. 6 AM he woke up. 6 to 7 he went for walking in the morning. Okay, 7:30 AM to 8 he had his breakfast. 8:30 to 9 he did freshing up and all. 9 to 11 he is studying. 11 to 12 he will be doing his hobbies, the activities. 12 to 1 he will be having his lunch. 1 to 3 he'll be sleeping. 3 to 5 study. 5 to 7 playing. 7:30 to 8:30 dinner.
8:30 to 9:30 p.m. story reading and at 9:30 he will be going to sleep. ठीक है, अभी हमारा टाइम कितना मैंने बोला था 10 o'clock, तो वो 10 o'clock ये 9 to 11 के बीच में आएगा. यस, दैट इज अभी जो चल रहा है. सो इसको मैं एक बॉक्स दे देती हूँ. ओके, अभी ये जो 10 o'clock के पहले जितने भी एक्शंस हो गए, इट इज कंप्लीटेड. अभी उसका अभी के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है. इट इज ऑलरेडी डन. सो दिस इज आर पास्ट टेंस. समझ में आया? ये 10 o'clock से पहले जितने भी एक्शंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ये है पास्ट टेंस. और अभी जो 10 o'clock के अंदर चल रहा है 9 to 10 व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, उस टाइम पे क्या हो रहा है? पढ़ाई हो रही है. सो व्हाट इज दिस? दिस इज आवर प्रेजेंट. ठीक है, हमारा जो बेसिक है हमारा प्रेजेंट टेंस, अभी जो हो रहा है. एंड इसके बाद जितने भी एक्शंस हैं, दैट इज 11 o'clock से लेके रात के 9:30 तक जितने भी एक्शंस हैं वो सारे आएंगे फ्यूचर के अंदर. ओके, दैट ऑल विल बी इंक्लूडेड इन द फ्यूचर टिल दिस. अंडरस्टूड? हमारा जो भी हम बोल रहे हैं दैट इज द प्रेजेंट. अभी जो है दैट इज आवर प्रेजेंट टेंस. वॉट एवर हैज हैपेंड बिफोर दैट, that is the past, and what will happen, that is the future. When I before described you the schedule, I use the tenses accordingly. If you have observed it, you would have easily understood there itself, but if not, you can now, I hope you have understood कि ये schedule से क्या पता चलता है, कितने actions हो चुके हैं वो past, जो हो रहा है वो present, अब जो होगा वो future. Clear? So you have understood all the three types of tenses. Simple present, present, past and future, and under those three you will have 4 in each. Okay, now let us move to simple present tense. Simple present tense. What is simple present tense? Simple present tense describes the action which is going on at the present time. ठीक है, तो उसके लिए आप जब सेंटेंस फॉर्म करते हो, इन एनी सेंटेंस यू विल हैव 3 things compulsorily. All the sentences must contain 3 things compulsorily. What is that? Subject, verb and object. ठीक है, so any sentences must contain 3 things: subject, verb, object. ये 3 चीज तो होना ही चाहिए. ओके, दैट इज द बेसिक. ऑन द बेसिस ऑफ दैट ओनली वी यूज द टेंसेस. नाउ लेट अस सी व्हाट इज द चेंज इन द वर्ब इन केस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस. सेंटेंस विल ऑलवेज हैव फर्स्ट द सब्जेक्ट, ओके, देन V1. In simple present tense, you will use V1. V1 is the present form of verb. V1 we will use plus S या फिर ES. S यूज करोगे प्लूरल में या फिर ES यूज करोगे जैसा उसका प्लूरल होता है, प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, फॉर एग्जाम्पल, रीटा प्लेज बास्केटबॉल. Rita is a singular person, therefore our verb will have S in it. Plays में ES नहीं लगता है, इसके लिए हमने S लिखा. तो ये जो plays है हमारा V1 verb हो गया और बास्केटबॉल. ठीक है, अगर 2 जन होते, फॉर एग्जाम्पल राम एंड श्याम प्ले cricket. Ram and Shyam play cricket. Rita plays basketball. ठीक है, तो यहाँ पे plays है. Why plays? Because Rita is singular. Therefore, I have added S. But if your subject is plural, then you will not use S. यहाँ पे S नहीं लगेगा. अगर आपका subject singular है तो ही S लगता है. ठीक है, एंड ES कब लगेगा? फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिसमें S नहीं लगता है, प्लूरल फॉर्म में ES लगता है, तो वहां पे आपको ES लगाना है, S नहीं. गो हो तो गो का गोस, GOES लगाएंगे हम. GOS गोस नहीं लिखते, GOES लिखते. हाँ, अंडरस्टूड? तो वैसे केसेस में ES लगता है. अब सिंपल प्रेजेंट टेंस हम कहाँ जनरली यूज करते हैं?
वी यूज इट फॉर हैबिचुअल एक्शंस। अगर हमको कोई हैबिचुअल एक्शन को डिस्क्राइब करना हो जो हम डेली करते हो, फॉर एग्जाम्पल आई ब्रश माई टीथ एवरी डे, आई टेक माई बाथ एवरी डे। तो ये एक्शन ऐसा नहीं है कि आपने महीने में एक बार कर लिया फिर नहीं करते हो, यू डू इट डेली। yes, therefore habitual actions will always be written in simple present tense। उसमें कोई past future कुछ भी नहीं, you will use only simple present tense। ओके, सेकेंड साइंटिफिक फैक्ट और यूनिवर्सल ट्रूथ कुछ कुछ है, जैसे कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, ओके, द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सेस। हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि द अर्थ रोटेटेड येस्टरडे ऑन इट्स एक्सेस, कल वो रोटेट किया आज नहीं किया, ऐसा नहीं है। इट डज इट इज द यूनिवर्सल फैक्ट। ओके, देयरफॉर वील यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस। नेक्स्ट इज प्रोवर्ब्स और सेइंग्स, जो कोड्स लिखते हो ना ब्लैक बोर्ड पे सब। फिर प्रोवर्ब्स है अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऐसे सब प्रोवर्ब्स होते हैं, मुहावरे होते हैं, वो सब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करेंगे। एंड द लास्ट नेचुरल क्वालिटीज एंड प्रोफेशनल एक्टिविटीज, जो भी बेसिक क्वालिटीज कैरेक्टर में आता है ह्यूमन बीइंग का, या फिर ऐसे कुछ एक्टिविटी है जो हमेशा उनके साथ रहेगा, ठीक है, वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में होगा। क्लियर, अंडरस्टूड? सो इन विच ऑल केसेस वी यूज द सिंपल प्रेजेंट टेंस, दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। What is the sentence structure, that also is explained to you. Clear? Now let us come to your textbook on page number 48। अभी इसमें कुछ कुछ आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं वर्ब्स के, वो किस तरीके से उसका फॉर्म होता है देखते हैं। द प्रेजेंट टेंस ऑफ बी, बी का प्रेजेंट टेंस कैसा होगा? बी को हम दो तरीके से यूज करते हैं। वन इज एज ए मेन वर्ब, उसको मेन वर्ब की तरह यूज करते। फॉर एग्जाम्पल ही इज हैप्पी, ओके, इन दिस इज अ फॉर्म ऑफ बी, बी का एक फॉर्म है इज, तो हमने ये इज को यूज किया है मेन वर्ब की तरह, ठीक है। सीधा अनदर एग्जाम्पल, ही इज प्लेइंग, इसमें जो इज यूज किया है दैट इज एज एन ऑक्सिलियरी वर्ब, सपोर्टिंग वर्ब की तरह यूज किया है। तो आइदर यू विल यूज बी एज द मेन वर्ब और एज द सपोर्टिंग और द ऑक्सिलियरी वर्ब। व्हेन you are using it as the auxiliary verb, it will be followed by a continuous tense, but if you are using it as the main verb then it will be only in simple present tense। तो अगर आपको be को यूज करना है simple present tense में, तो आप generally main verb के तौर पे ले सकते हो, ठीक है। Now I will show you a table which will show you which all forms of be we use, okay। Okay, see, it is given in the same page 48। There is a table positive, negative, interrogative। पॉजिटिव सेंटेंसेस में बी कैसा यूज होता है, नेगेटिव में कैसा है, इंट्रोगेटिव में। आई वी यू सब प्रोनाउंस है, फर्स्ट पर्सन, बोथ आर फर्स्ट पर्सन। आई इज फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, वी इज प्लूरल फर्स्ट पर्सन। यू and your, you and you both are singular plural of second person, and he she it, this much is of third person, you is of second person and I and we are of first person, ठीक है। तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पर्सन में कैसा यूज होता है पॉजिटिव में, बी का क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा आई के साथ, आर हो जाएगा वी के साथ, यू के साथ आर होगा, ही इज, शी इज, इट इज, दे आर। प्लूरल में बी का आर हो जाता है और सिंगुलर में इज या फिर एम, ये उसके शॉर्ट फॉर्म्स है। सिमिलरली नेगेटिव में हो तो नॉट लगाना होगा, दैट नॉट कैन बी पुट अप एट द एंड, आई एम नॉट, ही इज नॉट, शी इज नॉट, यू आर नॉट, एक्सेट्रा। और इंट्रोगेटिव में आई एम के जगह एम आई, वी आर के जगह आर वी, सी इट इज गिवन ओवर हियर, ओके, यू हैव टू गो थ्रू इट, ठीक है, अंडरस्टूड।
Yes. Similarly, you have present tense of have also. It is also like be की तरह have भी हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं, as a main verb as well as the auxiliary verb. Auxiliary verb is used when you have to make it into another tense. You can see the example, I have a pen. इसमें जो have है वो हमारा main verb की तरह है. ठीक है. Next is okay. Okay. Next example of have that we use is in terms of परफेक्ट टेंसेस. परफेक्ट टेंस में हम हैव यूज करते हैं, वहां पे हैव जो है वो ऑक्सिलरी का काम करता है. दैट आई विल शो यू. एन एग्जांपल इज गिवन बिलो द टेबल. फर्स्ट लेट अस सी व्हाट द टेबल हैज. ओके, सो द टेबल गोज लाइक सी. सिमिलर टेबल दिया है जैसे उसमें दिया था, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव. फर्स्ट पर्सन में आई और वी, सेकेंड में यू, थर्ड में ही, शी, इट. ठीक है. आई, वी और दे के साथ हैव आएगा, बाकी सभी के साथ हैज लगेगा. ठीक है. एंड नो 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 लगाया है फॉर नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में ऑर्डर चेंज किया. सी द एग्जाम्पल गिवन हियर. वी हैव सम मिल्क. हियर हैव इज शोइंग पोजेशन, सो इट इज द बेस वर्ब. ठीक है, मेन वर्ब की तरह या फिर मेन वर्ब वी कैन से. और यहाँ पे देखो हैव गॉट, हैज गॉट, यहाँ पे वो ऑक्सिलियरी वर्ब की तरह यूज किया है हैव को और हैज को. सो यहाँ पे गॉट जो है वो V3 फॉर्म है, तो ये हो गया परफेक्ट टेंसेस. ओके, समझ में आया, अंडरस्टूड कि हैव को कैसा यूज करना है. एज अ मेन वर्ब यूज करेंगे तो अकेला हैव या हैज आएगा, और सपोर्टिंग वर्ब की तरह हो तो हैव सपोर्ट में रहेगा और उसके साथ V3 लगता है. आई विल एक्सप्लेन परफेक्ट टेंस, तब क्लियर हो जाएगा. ओके. Again there is a table given on page number 50. It is of the tenses. मतलब simple present tense में कोई verb हो तो वो कैसा यूज किया जाएगा तीनों फॉर्म्स में. पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का वो बताया है. आई के साथ प्ले, वी प्लूरल है तो प्ले आएगा, एस नहीं लगेगा. यू प्ले, ही, शी, इट प्लेज आएगा. क्योंकि ही, शी, इट सिंगुलर है, थर्ड पर्सन, तो हम एस लगाएंगे. और दे के साथ भी प्ले, तो सिर्फ ही, शी, इट के साथ आप प्लेस लगाओगे. ठीक है. एंड इसका नेगेटिव देखो, डू नॉट, डू नॉट, डू नॉट. जब प्ले अकेला यूज किया हो, प्लेज नहीं. और अगर आपने प्लेज यूज किया है तो डज नॉट. एस वाला होगा तो डू के आगे आपको ES लगाना पड़ेगा, और अगर एस नहीं हो तब डू नॉट, डू नॉट, डू नॉट लगा सकते हो. और ये उसका इंट्रोगेटिव फॉर्म है. ठीक है, अंडरस्टूड. शॉर्ट फॉर्म्स आर ऑल्सो गिवन ऑन द सेम पेज, यू कैन गो थ्रू इट. Clear? Next is present continuous tense. Present continuous tense हम जनरली कब यूज करते हैं, जब हमको कोई एक्शन के बारे में बात करना हो जो अभी चल रहा हो. ठीक है. When I am speaking to it, that time the action is going on. We use present continuous tense. How the sentence structure goes? Subject plus is or are or am. Singular हो तो is, plural हो तो are और I हो तो am. Plus V1 plus ing plus object. Okay, let us see an example. It is raining near my house. It is the subject. Is जो है, ये तीन में से मैंने is लिया क्योंकि it सिंगुलर है. rain जो है वो मेरा V1 है और मैंने उसमें क्या लिखा, ing. अंडरस्टूड. तो हमारा जो बेस वर्ब है उसमें हमको ing लगा देने का. फिर near my house is the object. Understood? So it is raining near my house. Easy. Continuous tense is very easy to recognize. ing हो continuous tense. Okay. Subject singular हो तो is आएगा, I हो तो am आएगा, और subject अगर आपका plural है तो are आएगा. फिर जो verb दिया है वो verb लिख दो, उसके पीछे ing लगा दो. Easiest. Okay. अब कहाँ कहाँ ये नहीं यूज किया जाता है पहले वो देख लो.
हमको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहाँ पे, मतलब कौन से वर्ब्स है जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं यूज करते हैं. लेट अस सी दैट. Okay, so there are certain verbs which are not used in present continuous tense. Which are they? First, verbs of senses. हमारा जो sense करने के verbs होते हैं, hear, see, smell, हम ये सबको हम continuous में नहीं use करेंगे, हम इसके पीछे ing नहीं लगाएंगे. Second is verbs of feelings and emotions. फीलिंग, वॉन्ट, डिज़ायर, ऐसा सब होगा ना, सैडनेस, हैप्पीनेस, उसके पीछे हम ing नहीं लगाएंगे. Verbs of mental states and activity means you agree to something, you disagree, okay, you believe, you doubt, you imagine, ये सब जो verbs होते हैं उसके अंदर भी हम ing नहीं लगाएंगे. Then verbs showing possession, belong, own, etc. उसमें भी हम ing नहीं लगाएंगे. And some other verbs like seem, appear, cost, consist, contain, resemble, etc. इनमें भी हम ing नहीं लगाएंगे. Understood? तो ये कुछ verbs है जिसके साथ हम ing फॉर्म नहीं यूज करेंगे. No, no, no. Okay? Understood? तो इसका लिस्ट पूरा आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, पेज नंबर 55 पे. You have to go through it. Clear? इतना पता चल गया ना? Now, okay. अब कुछ कुछ केसेस जहाँ पे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज करते हैं. कैसा है? इट इज यूज टू डिनोट अ टेम्पररी एक्शन विच मे नॉट बी नेसेसरली हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. कुछ टेम्पररी एक्शन जो चलते आ रहा है लेकिन हम जब बोल रहे तब वो नहीं चल रहा है, लेकिन हमारे पूरे डे ऑफ एक्शन में वो कहीं ना कहीं आता है. फॉर एग्जाम्पल, दीज डेज आई एम रिवाइजिंग माई कोर्सेज. ठीक है, नाउ डेज आई एम लर्निंग हाउ टू स्पीकिंग फ्रेंच. तो ये सब क्या है कि आप जब बोल रहे हो तब आप वो पढ़ रहे हो ऐसा नहीं है, लेकिन आजकल आप वो कर रहे हो. तो सम एक्शंस, टेम्पररी एक्शंस विच आर गोइंग ऑन एट दिस मोमेंट, मीन्स एट दिस मोमेंट इन योर लाइफ, बट व्हेन यू आर स्पीकिंग इट माइट नॉट बी गोइंग ऑन. ठीक है, तो उसमें भी हम ing फॉर्म दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस को यूज करेंगे. ओके, एक्सप्रेशन लाइक दीज डेज, नाउअडेज, ये सब हम यूज कर सकते वैसे सेंटेंसेस में. Next is, it is also used to denote an action about to take place in the near future. अब फ्यूचर में जस्ट थोड़े टाइम के अंदर आप वो एक्शन करने वाले हो, तभी भी आप उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई एम मीटिंग हिम टुमारो मीन्स इमिडिएटली, कल के कल ही मैं मिलने वाली हूँ. तो वो कल मिलने वाली हूँ या मिलने वाला हूँ, वो जो है दैट इज इमीडिएट एक्शन विच कैन टेक प्लेस विद इन some hour or minutes. So that is where we will use present continuous tense. Understood? Another is when you are talking about some habitual action. उस टाइम पे हम present टेंस यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट, हैबिचुअल एक्शन. लेकिन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. फॉर एग्जाम्पल, द टीचर करेक्ट्स आवर वर्क एवरी डे. टीचर हमारा जो वर्क है उसको रोज चेक करते हैं. सो करेक्ट्स दैट इज हैबिचुअल एक्शन जो होता ही रहता है. ठीक है, तो उसमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे. द टीचर इज करेक्टिंग आवर वर्क नाउ. ये एक्शन क्या है कि जब तुम बोल रहे हो तब टीचर चेकिंग कर रही है. तो वहां पे जो वर्ब यूज करोगे वो कंटिन्यूअस टेंस में होगा जिसमें ing लग सकता है. अंडरस्टूड? ये क्या है कि वो रोज करते हैं तो करेक्ट, सिंपल प्रेजेंट टेंस, बट अभी कर रहे हैं जब आप बोल रहे हो तो ing. Clear? And sometimes words like always, never, often, usually, sometimes, every day, etc. are used with simple present tense, and with present continuous we use the words like now, today, etc. ठीक है, so that is given in your textbook. You can go through the examples as well. Okay, now is regarding have. It's given here. When have shows possession or condition, we should not use it in the present continuous tense. Have जब बताता है कि मेरा है वो चीज, ठीक है, वो आपका खुद का possession बताता है कि it belongs to you, वो बता रहा है, तो उस टाइम पे हम ing में नहीं यूज करेंगे. For example, I have a car
आई एम हैविंग अ कार नहीं बोलेंगे, आई हैव अ कार। आई एम हैविंग अ कार का मीनिंग क्या होगा पता है, कि मैं कार खा रहा हूँ या खा रही हूँ, ठीक है। सो दैट इज नॉट what we are about or what we are expressing. Yes, we want to convey is I have a car, मेरे पास कार है, that is a possession. So हम उसको simple present में use करेंगे. I have a headache, मुझे सर दर्द है। I'm having a headache नहीं बोलेंगे, ठीक है। So when you are showing possession, you will use in simple present and not in continuous. Another thing is, but we can use have in the present continuous tense in the following cases. Which cases? When have refers to some arrangement for the future. जैसे कि future के कुछ arrangement के बारे में आप डिस्क्राइब कर रहे हो, डिस्कस कर रहे हो, तब आप have को ing में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, we are having a party tomorrow. That is, tomorrow you will be having a party. So you are describing it. तो उस टाइम पे हम present continuous tense में उसको यूज कर सकते हैं। In sentences like she is having her bath, the action is going on. He is having his lunch. So यहाँ पे have का जो meaning है वो खाना मतलब taking वो सेंस में, तो वहाँ पे आप ing में यूज कर सकते हैं, ठीक है। I hope you have understood how to use have in simple present and ing form. Clear? Okay. Now let us move to the next kind of present tense, that is present perfect tense. What is present perfect tense? We use present perfect tense to describe actions that have been recently completed. ठीक है, जब हम बोल रहे हैं उसके थोड़ी सी देर पहले ही वो एक्शन कंप्लीट हो चुका होगा, तब हम यूज करेंगे present perfect tense. ओके एंड उसका इफेक्ट हमको फील हो रहा है अभी भी, जब आप बात कर रहे हो तभी भी उसका इफेक्ट आ रहा है आप पे, तो आप यूज करोगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा होगा? सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव। हैज विल बी यूज विद सिंगुलर, हैव विल बी यूज विद प्लूरल, प्लस V3 पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेट अस सी द एग्जांपल। I have played football. मैंने फुटबॉल खेला है, खेल चुका हूँ या खेला है, तो उसको आप डिस्क्राइब कर रहे हो, तब आपने V3 फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया है। प्ले, प्लेड, प्लेड, जो वो लंबा लिस्ट होता है ना वर्ब्स का, उसमें नहीं होता प्ले, प्लेड, प्लेड। यू हैव बाय हार्टेड दैट लिस्ट इन द लास्ट class, that was in 6th. Yes, so in that list you had these kind of verbs. तो I के साथ have लगेगा and then you use play plus ed. ed is for V3 form, ठीक है। She has done her work. Has done, हमने has क्यों यूज किया? Because she is singular. Singular के साथ has लगेगा, plural के साथ have और V3 form of verb. Clear? Other some fact regarding present perfect tense are, yes, here you can see कि present perfect tense affirmative sentence मतलब positive sentence में कैसा होता है, मैंने बोला has और have plus past participle, V3 जो होता है वही है, ठीक है। नेगेटिव में क्या होगा? has और have के बाद आपको सिर्फ not लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, I have not played, he has not played. अंडरस्टूड? उस तरीके से। और इंट्रोगेटिव में आई हैव की जगह हैव आई, ही हैज की जगह हैज ही। देखा, सिर्फ उसको उल्टा कर दिया है। ओके, सो दिस इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। सम अदर फैक्टर्स, दिस आई हैव टोल्ड यू कि जस्ट कंप्लीट हुआ है लेकिन उसका एक्शन का इफेक्ट अभी भी हमको फील हो रहा है। आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है, मतलब अभी मुझे भूख नहीं लगी है। भूख क्यों नहीं लगी है? क्योंकि मैं खा चुका हूँ। सो दैट एक्शन इज कि पास्ट में हो चुका है लेकिन उसका इफेक्ट अभी भी है। अभी आप क्यों नहीं करना चाहते हो? क्योंकि पास्ट का असर अभी भी हो रहा है। ओके, this is what is present perfect tense. Now we'll go to the last kind of present tense, that is present perfect continuous tense. Yes, present perfect continuous tense. To describe actions that began in the past and are still in progress. मतलब पास्ट में कोई एक्शन स्टार्ट हुआ था और अभी भी चल रहा है, थोड़े टाइम तक चलेगा या फिर थोड़े टाइम में खत्म होगा, ऐसा कुछ हो, पर वो पास्ट में स्टार्ट हो चुका था।
ठीक है, उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या फिर हैव बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, मतलब ING फॉर्म ऑफ वर्ब। यस, पर आपको इधर बीन भी लगाना है। परफेक्ट टेंस का हैज भी आ गया, कंटिन्यूअस का ING भी आ गया और बीन भी लगाना है। सारे वर्ब तो आ ही गए, है ना। लेट अस सी द एग्जांपल। रश्मि हैज बीन प्लेइंग चेस। Rashmi has been playing chess. Here has is used as the supporting verb. Been as it goes to this sentence structure. Then play plus ing. V1 form plus ing. Then the object. Second example. Shuchi has been talking to some friends. It can be like उनका talking हो चुका है या she might be completing within some time. Okay, so these are some action which had began in the past and it is still going now also when you are speaking. That time you will use present perfect continuous tense. Okay, clear? Yes. Okay, this is given on page number 68. इसमें क्या बताया है कि sometimes you will be getting confused as to क्या present continuous use करना है कि present perfect continuous use करना है. How will it be easy to distinguish? See, just see the two examples. Umesh is sleeping. ठीक है, what it is saying that Umesh is sleeping. अभी वो क्या कर रहा है, अभी वो सो रहा है. This is simple present continuous. ठीक है, present continuous हमारा जो है वो. Second example, Umesh has been sleeping for half an hour. मतलब वो आधे घंटे पहले सोने गया था और अभी जब आप बात करो तभी भी वो सो रहा है। ठीक है, इसमें क्या था कि अभी वो सो रहा है और ये पहले से सोते ही रहा है, मतलब पहले भी सो रहा था अभी भी सो रहा है। तो जब ऐसे कुछ डिस्क्राइब करना हो तब आप यूज करोगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। And generally in present perfect continuous tense a time expression is usually given. अगर आपको time expression दिया है 10 minutes, half an hour, ऐसे सब तो समझ जाने का कि उसमें continuous present perfect continuous आएगा। Okay, clear? Now let us move to the second kind of tense, that is past tense. ठीक है, past tense के अंदर the very first kind of tense, past मतलब जो already हो चुका है, it is done. It has nothing to do with the present time. It is completed action. Yes, the very first kind of past tense is the simple past tense. How the sentence structure goes: subject plus V2 plus object. V2 is the second form, that is past form of verb. Yes, example, I had a pencil. Here had is used as the main verb. Yes, they played cricket. Play, played, played. तो played जो second वाला है that is V2. We have used that played. Okay, I will give one more example. She bought a book. She bought a book. यहाँ पे bought जो है वो V2 है. How will you know which is V2? ये list is given in your previous year textbook also. उसमें दिया है buy, bought, bought. उसमें ये जो bought V2 में आता है वो हमने यूज़ किया है. Play, played, played ऐसा आता है. तो played जो second form में आता है वो हमने यहाँ पे यूज़ किया है. Okay, understood? Simple past tense. Subject plus V2 plus object. Yes. As I told you, past tense is used to express, simple past is used to express the action or the habit that you possessed in the past. उसका अभी present में कोई इफेक्ट या रिलेशन नहीं है, वो पास्ट में हो चुका है, तो वहाँ पे आप सिंपल पास्ट यूज करोगे. जस्ट लाइक इन सिंपल प्रेजेंट वी हैड डिस्कस अबाउट द बी फॉर्म ऑफ वर्ब, पास्ट में भी वैसा है. देखो यहाँ पे दिया है टेबल इज गिवन. यस, आई वॉज या वेर. प्रेजेंट में इज आर एम था, पास्ट में दो ही है, वॉज या वेर. वॉज विल बी यूज्ड विथ पास्ट सिंगुलर एंड वर विल बी यूज्ड विथ प्लूरल. ठीक है, आई वॉज, वी वर, यू वर, you were, he was, she was, it was, they were. ठीक है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर और सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज, और नॉट नेगेटिव है तो नॉट लगा देने का, और इंट्रोगेटिव में रिवर्स ऑर्डर.
ओके, सिमिलरली फॉर हैव, ओके, हैव का यूसेज बहुत ही सिंपल है, यू डोंट हैव टू मेक एनी टेबल. पॉजिटिव में हैड एक ही फॉर्म है, आई हो, वी हो, यू हो, ही हो, शी हो, इट हो, कुछ भी हो, दे भी हो, आप हैड ही यूज करोगे, इजीएस्ट. यस, पॉजिटिव हो तो हैड, नेगेटिव हो तो हैड नॉट या डिड नॉट हैव, और इंट्रोगेटिव हो तो हैड यू या फिर डिड यू हैव. यू कैन यूज एनी ऑफ them. आई हैड अ पेंसिल, आई हैडंट एनी पेंसिल, और आई डिड नॉट हैव एनी पेंसिल. Had you a pencil? Did you have a pencil? अगर did यूज करोगे तो have यूज करना, had नहीं. Okay, understood? Short forms are also given. Okay. Yes, when forming the sentences in the simple past tense, so how it goes? For positive or affirmative sentence, you will use the V2 form of verb, like I played, you played, he played, etc. नेगेटिव हो तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस रूट फॉर्म. रूट फॉर्म मतलब V1 लगाना है. अगर आप डिड लगाओगे तो V1 लगाना है. डिड यूज करोगे तो V1. अगर डिड नहीं यूज किया तो डायरेक्ट आप V2 यूज कर सकते हो. जैसे कि आई डिड नॉट प्ले, हियर डिडंट इज यूज, दैट इज द शॉर्ट फॉर्म, दैट मीन्स डिड नॉट. डिड एंड नॉट. एंड वी हैव यूज प्ले विच इज द V1 फॉर्म. प्लेड नहीं यूज किया क्योंकि हमने डिड यूज किया था. और इंट्रोगेटिव फॉर्म कर रहे हो तो डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस रूट फॉर्म. डिड ही प्ले, डिड यू प्ले, ऐसा. ठीक है. या फिर क्वेश्चन वर्ड हो तो वाई डिड ही प्ले, व्हेन डिड ही प्ले. अंडरस्टूड? लाइकवाइज यू विल फॉर्म. नेक्स्ट इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. Let us see what is past continuous tense. Past continuous tense is used to express an action which was in progress or at some point of time in the past, but whose time limits are not mentioned. मतलब past continuous tense क्या होता है कि कुछ action जो past में कुछ time तक चल रहा था लेकिन उसकी time limit नहीं बताई है. ठीक है. थोड़ा टाइम तक वो चल रहा था लेकिन अभी कब वो खत्म हुआ वो हमको उसकी आइडिया नहीं है. फॉर एग्जाम्पल उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं. सब्जेक्ट प्लस वॉज या फिर वेयर. वॉज विल बी यूज विद सिंगुलर सब्जेक्ट एंड वेयर विल बी यूज विद द प्लूरल सब्जेक्ट. देन V1 ing एंड ऑब्जेक्ट. कंटिन्यूस में ing है ही तो V2 आपको याद रखना ही नहीं है. V2 सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस में होता है और कहीं पे भी नहीं. और V3 पास्ट पार्टिसिपल में. बाकी कंटिन्यूस में V1, सिंपल प्रेजेंट में V1, फ्यूचर में भी हम V1 यूज करते हैं. ओके, जस्ट सी द एग्जाम्पल. दे वर प्रैक्टिसिंग द डांस. दे वर प्रैक्टिसिंग. अभी कर रहे कि नहीं पता नहीं, पर कब खत्म किया वो भी हमको आइडिया नहीं है. दे वर डूइंग दैट. ओके, सो वर वी यूज बिकॉज दे इज प्लूरल एंड ing लगाया. नेक्स्ट इज रीता वॉज राइटिंग द एसे ऑन सेव एनवायरमेंट. वॉज राइटिंग, पहले लिख रही थी अब पता नहीं, सो राइटिंग, राइट के साथ ing लगा दिया. एंड वॉज बिकॉज रीता इज अ सिंगुलर पर्सन. यस. There are certain cases where we use past and past continuous, that is simple past and past continuous in the same sentence. Just see. Nitin was sleeping when the telephone bell rang. Nitin सो रहा था जब बेल बजा था. ठीक है. So जब बेल बजा उस टाइम पे नितिन क्या कर रहा था, वो सो रहा था. सो दैट एक्शन इज बीइंग डिस्क्राइब्ड. तो कभी कभी हम दोनों को साथ में यूज करते हैं बिकॉज एक एक्टिविटी सजेस्ट करता है कि दूसरा एक्टिविटी क्यों नहीं हुआ, या फिर वाई द सेकेंड एक्टिविटी वॉज कंटिन्यूइंग व्हेन द फर्स्ट वॉज नॉट अटेम्प्टेड. ऐसा कुछ बताना हो तो बता सकते हो. अनदर एग्जाम्पल. द बॉयज वर मेकिंग अ नॉइज व्हेन ही एंटर्ड द क्लास. तो जब ये एक्शन हुआ उस टाइम पे दूसरा एक्शन चल रहा था, वो बताना हो तब आप दोनों को साथ में यूज कर सकते हैं. ठीक है. Understood how you'll use simple past and continuous tense together, then which is the sentence structure of past continuous tense. That's it. Next is past perfect tense. So when do we use past perfect tense? It is used to express an action completed before a given past moment. Past का कोई
टाइम के पहले ही वो एक्शन कंप्लीट हो गया, मतलब रीसेंट पास्ट में आपका एक एक्शन कंप्लीट हुआ था, उसके पहले ही पास्ट में कोई और एक्शन कंप्लीट हुआ, उसके बारे में बताना हो, दैट टाइम यू विल यूज पास्ट परफेक्ट टेंस. लेट अस सी द सेंटेंस स्ट्रक्चर. सब्जेक्ट प्लस हैड, सिर्फ हैड आएगा. आई हो, वी हो, यू हो, ही हो, शी हो, मैंने बोला था ना, हैड आएगा. Then V3, I told you, perfect tense will always have V3, that is the participle form of the verb, past participle, and the object. Example, they had won the match. Had won. They plural है, फिर भी हमने had use किया. Won, which is the V3 form, that the match. Next is, she had played the football. Had played. Had use किया, भले दे था या शी हो, हमने हैड यूज किया. और प्लेड विच इज द V3. ओके, अंडरस्टूड? यस, आई टोल्ड यू व्हेन वी विल यूज द पास्ट परफेक्ट. सी, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन. हम स्टेशन पहुंचे, उससे पहले ही ट्रेन चली गई. तो तुम्हारा पहुंचना भी हो गया कंप्लीट, और ट्रेन चला गया वो भी कंप्लीट हो गया एक्शन. समझ में आया? तो रीच्ड, ऑलरेडी पहुंच चुके थे तुम, उससे पहले ट्रेन चली गई थी, तो वो पास्ट और आगे पास्ट चला गया. अंडरस्टूड? सो ऐसे केसेस में भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस को प्रिफर करते हैं. ठीक है? ओके, मतलब पास्ट का कोई एक्शन हो, उसके पहले ही कोई एक्शन कंप्लीट हो चुका हो, तो वो एक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए, आपका जो फर्स्ट एक्शन है उसको डिस्क्राइब करने के लिए आप पास्ट परफेक्ट टेंस को यूज करोगे. Also with some kind of verbs such as hope, expect, think, mean, suppose, want, etc. इनके साथ भी हम to indicate that a past hope, desire, etc. was not realized. ऐसा कुछ एक्शन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे लेकिन वो पूरा नहीं हुआ, तभी भी हम पास्ट परफेक्ट को यूज कर सकते. आई हैड होप दैट आई वुड पास. मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मैं पास हो जाऊंगा, ठीक है, या हो जाऊंगी, विच एवर वे. तो वहां पे हम पास्ट परफेक्ट टेंस को प्रिफर करेंगे. She had thought of calling on us, but she changed her program. उसने सोचा था कि वो कॉल करेगी, लेकिन उसने अपना प्रोग्राम ही चेंज कर लिया. तो किया नहीं वो एक्शन, लेकिन करने वाले थे पर किया नहीं, तभी भी हम पास्ट परफेक्ट को यूज करेंगे. ओके, इट इज क्लियर टू यू नाउ when and where to use past perfect? The last topic for our today's discussion is past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense कब यूज होता है? जब पास्ट में कोई एक्शन स्टार्ट हुआ था, ठीक है, बहुत टाइम तक रहा, वो अभी खत्म हुआ, जस्ट खत्म हुआ, या फिर जस्ट खत्म होने वाला है, ऐसा कुछ हो, तब आप यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ठीक है, उसके सेंटेंस स्ट्रक्चर गोज लाइक सब्जेक्ट प्लस हैड बीन. आई टोल्ड यू परफेक्ट कंटिन्यूस साथ में आ गया तो बीन भी आएगा, परफेक्ट का हैड भी आएगा, और आईएनजी का आईएनजी भी आएगा, कंटिन्यूस का आईएनजी भी आएगा. सो V1 प्लस आईएनजी एंड द ऑब्जेक्ट. शी हैड बीन वेटिंग फॉर 2 hours. वो 2 hours से वेट कर रही थी. दे हैड बीन वर्किंग सिंस 2 o'clock. वो 2 घंटे से, मतलब 2 o'clock से काम कर रहे थे, एंड वो 2 घंटे से वेट कर रही थी, मतलब अभी भी कर रही है, या जस्ट उसने कंप्लीट किया और तुम आ गए, ऐसा कुछ. ठीक है, सो तब आप यूज करोगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. आई गेव यू 2 एग्जाम्पल्स ऑफ सिंस एंड फॉर. ठीक है, सिंस कब यूज करते हैं कि सिंस और फॉर का जनरली आप लोगों को कंफ्यूजन होता है. जब आपको एम्फसाइज करना है कि एक्शन कितने बजे स्टार्ट किया, ठीक है, तो उस टाइम पे फोकस करना हो, तब आप सिंस को यूज करोगे. जब आपको टाइम पे फोकस करना हो, पॉइंट एट विच इट हैड स्टार्टेड. ओके, और ड्यूरेशन पे फोकस करना कि कब तक वो चल रहा है, 2 घंटे, 3 घंटे, 10 घंटे, वो ड्यूरेशन बताना हो, तब आप यूज करोगे फॉर. कब स्टार्ट हुआ बताना हो तब सिंस, कब तक चला ड्यूरेशन बताना हो तो आप फॉर यूज करना. क्लियर? ओके, अंडरस्टूड. नेक्स्ट इज यू आर गिवन अ कंसेप्ट कॉल्ड यूज्ड टू. यूज्ड टू को कहाँ यूज करते हो उसके बारे में बताएं. यूज्ड टू को आप जनरली यूज करोगे ऐसे कुछ एक्शन जो आप पास्ट में करते थे लेकिन अभी वो नहीं होता है.
उसका कोई प्रेजेंट फॉर्म नहीं है, वो पास्ट में होता था पर अभी उसका कुछ भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल, शी यूज टू टीच मी इंग्लिश, वो मुझे इंग्लिश पढ़ाया करते थे, अभी नहीं है, पहले करते थे, ठीक है। एंड यूज टू का कोई प्रेजेंट फॉर्म नहीं होता है। वी यूज द सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑफ द वर्ब टू एक्सप्रेस दैट ऑफन हैव इन द प्रेजेंट। हाँ, हम प्रेजेंट टेंस को अभी के एक्शन के लिए डिस्क्राइब करते, तो यूज टू का कभी भी हम प्रेजेंट फॉर्म नहीं यूज करते, यूजर्स नहीं, सिर्फ यूज्ड टू यूज करते जो पास्ट फॉर्म में है। शी ऑफन टीचर्स में इंग्लिश ग्रामर, मतलब वो पहले कभी कभी हमको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाते थे, पर यहाँ पे हमने टीच वर्ब को ही प्रेजेंट फॉर्म में बता दिया, यूजेस टीच नहीं है, पर यहाँ पे देखो यूज टू टीच, ठीक है। तो यूज टू को जनरली हम पास्ट के प्रेफरेंस में लेते हैं। और यहाँ पे बताया है कि पॉजिटिव में कैसा है, देन यूज टू के साथ हमेशा V1 वर्ब ही लगेगा, V2 नहीं लगेगा, ठीक है। नेगेटिव में कैसा है और बाकी बताया। क्लियर? I hope you have understood all the both the tenses that I have taught you today. If you have any doubt, you can ask regarding the exercise that we'll be discussing in the Google Meet session. Okay, I hope you have understood. Go through this video once again if you have not understood properly. Try to understand remaining with the future tense that we'll be doing in the next session. Have a nice day.